Thank you, sir. To hear the translation on your headphones, please press 1 for Spanish, 2 for English, and 3 for Hindi. I repeat, 1 for Spanish, 2 for English, and 3 for Hindi. I take this opportunity to invite Dr. Sudham Khareji, Commissioner, Public Relations, Government of Madhya Pradesh, to deliver the welcome address and formally commence today's proceedings. Thank you. Buenos dias, good morning, namaste. It's my distinct honor and privilege to welcome you all to the Madhya Pradesh India Business Forum, state with infinite possibilities and heart of incredible India. We are particularly honored by the gracious presence of Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, whose vision and commitment to the inclusive development and investment led has transformed our state into one of India's fastest growing economies. I welcome Mr. Dinesh Patnaik, His Excellency Ambassador of India to the Spain. Sir, thank you for being a bridge that strengthens the Indo-Spanish relationship. I especially welcome Mr. John Nisha Anthracalis, the President Foundation Hispania India, for your support for fostering bilateral cooperation between the states, India and Spain. Among the others, I welcome the senior members of our delegation, senior officials from Madhya Pradesh, Mr. Sanjay Dubey, Sri Shivshankar Shukla, Mr. Raghavendra Kumar Singh, Mr. Ilayaraja Chandramouli Shukla. After the visit to the Dubai, this is very important and remarkable visit to the Spain, especially at Madrid, which will make a significant step towards strengthening the bilateral relationship, not only the trade and commerce, but cultural, for tourism as well as sports. The morning visit of Honorable Chief Minister to the La Liga head office has already kick-started this discussion, and look forward this whole day for the fruitful discussions, collaborations, and mutually beneficial outcomes out of the discussions. I once again welcome to this forum. Thank you. Gracias. Namaste. Thank you very much, sir, for your warm and gracious words of welcome, which have beautifully set the tone for this important gathering. It is my privilege to invite Mr. Juan Ignacio Entrecanales, President of Fundación Consejo Hispania India, to kindly address this august gathering. Thank you. Good morning. Honorable Chief Minister, distinguished guests, authorities, colleagues and friends. I'm truly honored to address this business conference aiming at exploiting the vast business opportunities presented by the state of Madhya Pradesh under the inspiring leadership of the Honorable Chief Minister, Mr. Mohan Pradesh. I'm pleased to be here today as the President of the Spain-India Council Foundation, a non-profit organization committed to fostering mutual knowledge between the two countries. The Spain-India Council Foundation serves as a public diplomacy instrument, bridging our two nations and facilitating dialogue, cooperation, and strategic public-private partnerships between India and Spain, with the support, of course, of our Ministry of Foreign Affairs. It was launched 15 years ago, coinciding with the historic visit of President Patil to Spain. Madhya Pradesh has indeed emerged as a key hub in India, offering great investment opportunities across sectors such as renewable energy, the automotive industry, textiles, food processing, infrastructure development, healthcare, and more.
This diverse landscape reflects Madhya Pradesh's ambition for sustainable development and innovation, making it an attractive destination for Spanish businesses and investors. Spanish companies have a strong track record of international expansion, and they are eager to explore further opportunities for partnership and investment in Madhya Pradesh. Spain also has much to offer to India, and Madhya Pradesh, known for its world-class infrastructure, skilled workforce and diverse economy. This conference represents an important step in facilitating business opportunities between our two countries. It is a significant occasion to connect, exchange ideas, and create business partnerships. Let us work together to share expertise and create lasting connections that will not only benefit our businesses, but also contribute to the growth and prosperity between India and Spain. The Spain-India Council Foundation is eager to facilitate this and support all these initiatives. Thank you again for this invaluable opportunity. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your thoughtful and inspiring words. We deeply appreciate your continued commitment to strengthening the bonds between Spain and India. I now have the honor of inviting Shri Raghavendra Kumar Singh Ji, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh. We shall screen a short audiovisual film that beautifully captures the infinite possibilities that Madhya Pradesh has to offer across sectors like textiles, pharmaceuticals, food processing, and tourism. If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET, and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities.
Vande Mataram. Good morning. I am very happy to be here in this great country, Spain, and one of the greatest city in Europe, Madrid. Friends, I am here to present the case of Madhya Pradesh, the central provinces of India. Now, one poet from Madhya Pradesh, one poet from Spain said something about how to get the things done. You have to create your own path. Honorable Prime Minister has always been very keen to create new opportunities for the global companies. How can they establish their presence in India? And the kind of opportunities India offers at this point of time, that is unparalleled in the entire world. Honorable Chief Minister, Sir Dr. Mohan Yadav sir, he has always been very keen to develop the industrial and commercial sector in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh will go to become a Viksit, developed state in this developed India concept of 2047. Now, what Madhya Pradesh is trying and what India is trying. So we are trying to create India Middle East Europe corridor to bridge the trade and infrastructure gap all across the continents, and the business opportunities for India, for Middle East and for European countries, and then further to United States. तो देखिए, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया विदेश दौरे पर हैं और ये तस्वीरें स्पेन से आपको दिखा रहे थे, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है, निवेश को लेकर निवेशकों से मुलाकात की जा रही है। मध्य प्रदेश में किस तरह से निवेश को बढ़ावा दिया जाए, इसी और जहां मध्य प्रदेश सरकार लगातार अग्रसर है, और इसी के चलते विदेश दौरे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर मध्य प्रदेश के, जहां 355 प्रोजेक्ट रोके गए, फ्लाईओवर और ROB की डिजाइन रद्द कर दी गई। डिजाइन की जांच के लिए जहां हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है, और 1200 करोड़ के 140 निर्माणाधीन प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल हैं। 250 बड़े पुल, 100 रेलवे ओवरब्रिज का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। शहरों के बीच जहां 5 एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया है। हाईटेक टीम का गठन किया गया है, और पहले वो टीम सही तरीके से जानकारी लेगी डिजाइन को लेकर, उसके बाद फिर इन सभी प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। राजधानी भोपाल में 90 डिग्री ओवरब्रिज को लेकर हुए विवाद के बाद पीडब्ल्यूडी ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने तमाम जो फ्लाईओवर हैं, आरओबी हैं, उनकी डिजाइनों को रद्द कर दिया है। आप यहां पर देखेंगे कि जो काम है वो फिलहाल बंद है। ये इस्वाक का वही 90 डिग्री ब्रिज है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने आदेश जारी कर करीब 140 निर्माणाधीन फ्लाईओवर, आरओबी और एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कुल 355 प्रोजेक्ट को फिलहाल पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लोक निर्माण विभाग की जो ब्रिज शाखा है उसके द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। इनमें 250 बड़े पुल हैं, करीब 100 रेलवे ओवरब्रिज और शहरों के बीच 5 एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट को तब तक रोका गया है जब तक कि पूरी डिजाइन को तकनीकी रूप से उसकी जांच नहीं हो जाती है। इन सभी परियोजनाओं की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग यानी GID निरस्त की गई है। तो ये आदेश जारी किया गया। साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो है गाइडलाइन भी जो है तमाम एजेंसियों के द्वारा को लेकर जारी की गई है, ताकि उन गाइडलाइन का पालन ये तमाम एजेंसी करे। तकनीकी जो जांच है वो इन तमाम ब्रिज और फ्लाई ओवरब्रिज की जो है वो की जा रही है। उसी के बाद जो है जब हरी झंडी मिलेगी उसके बाद इनका काम शुरू हो सकेगा। कैमरामैन चंचल के साथ मनोज राठौर, BS TV भोपाल।
भोपाल से अगली खबर, लोक निर्माण विभाग का एक और यू टर्न देखने को मिला, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग ने फिर से आदेश बदला है। किरकिरी के बाद डिजाइन रद्द रोकने वाला आदेश निरस्त कर दिया गया। टीसी वर्मा से जहां त्रुटिवश जारी हो गया था यह आदेश, गलती से आदेश जारी हो गया था और इसी के चलते इसे निरस्त कर दिया गया है। देखिए, जहां किरकिरी के बाद डिजाइन रद्द रोकने वाला जो आदेश था वो निरस्त हो चुका है। मुख्य अभियंता ने जानकारी दी है कि जहां गलती से यह आदेश जारी किया गया था। तो देखिए, लोक निर्माण विभाग का एक और यू टर्न यहां देखने को मिल रहा है, जहां पहले ये बात सामने आ रही थी कि 355 जो प्रोजेक्ट हैं वो रोके गए हैं। हाईटेक कंपनी, हाईटेक टीम का गठन होगा, वो पहले जांच पड़ताल करेगी डिजाइन को लेकर, उसके बाद फिर जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे चालू किया जाएगा। लेकिन अब यहां पर यू टर्न देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर और आरओबी निर्माण जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन, जहां प्रदेश में फ्लाईओवर और आरओबी बन रहे हैं और जिसके चलते अब तकनीकी जांच के बाद ही पास होंगे। लोक निर्माण विभाग ने जहां उच्च स्तरीय समिति बनाई जो इन निर्माण कार्यों में डिजाइन और इसके साथ ही अलाइनमेंट, ऊंचाई, गति, सीमा और सुरक्षा मानकों की तकनीकी जांच करेगी। जहां लोक निर्माण विभाग और सड़क विकास निगम के वरिष्ठ इंजीनियर इस बीच शामिल किए गए इस टीम के बीच भविष्य में बनने वाले फ्लाईओवर और जहां ओवरब्रिज की गुणवत्ता बेहतर करने का मकसद, जरूरत पड़ने पर समिति में अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकेगा। तो देखिए, टीम का गठन कर लिया गया है, सभी बड़े अधिकारी इस टीम में मौजूद हैं और जांच पड़ताल की जाएगी डिजाइन को लेकर, ऊंचाई को लेकर, सुरक्षा और इसके चलते और भी ऐसे मानक जिनको लेकर ध्यान में रखा जाएगा। खबर इंदौर से, बच्चों से भरे ऑटो को कार ने जोरदार टक्कर मारी। महिला चालक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी और हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। जहां घायल बच्चों को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। सेंट पाल के बच्चे ऑटो से स्कूल जा रहे थे। ऑटो में सभी 7 बच्चे बैठे हुए थे। राजकुमार ब्रिज के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, ये बच्चे, ये मासूम बच्चे जो बैठे हुए हैं और पूरा मामला आपको बता दें, इस ऑटो में ये बच्चे सवार थे। जहां राजकुमार ब्रिज के पास ये पूरी घटना घटती है। इंदौर से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। देखिए, लोगों की भीड़ भी जहां इकट्ठा हो जाती है। एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी इस ऑटो को और इस ऑटो में स्कूली बच्चे सवार थे। सभी बच्चों को जहां अस्पताल भी पहुंचाया गया। जबलपुर से अगली खबर, जहां आय से अधिक संपत्ति मामला, जहां एआरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ खात्मा रिपोर्ट निरस्त कर दी गई। जहां जिला अदालत ने ईओडब्ल्यू की खात्मा रिपोर्ट रद्द की है। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू एसपी को आदेश दिया और इसके साथ ही मामले की जांच कर 27 जुलाई को एसपी रिपोर्ट भी दें। ये बात भी कही है, जहां शिकायतकर्ता ने खात्मा रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति भी लगाई है और आरोपी को लाभ पहुंचाने, साक्ष्य छुपाने का आरोप भी लगा है। 27 जुलाई तक रिपोर्ट देने को लेकर ये बात सामने आई है। शिकायतकर्ता ने खात्मा रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति लगाई है और इसी के चलते आरोपी को लाभ पहुंचाने, साक्ष्य छुपाने का यह आरोप भी लगा है। इसी के चलते रिपोर्ट मांगी जा रही है। 27 जुलाई का समय रखा गया है। राजधानी भोपाल में बदमाश बेखौफ हैं। जी हां, शाही दरबार के सामने जानलेवा हमला हुआ। अमन खान नामक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। नरेंद्र और नीलेश ने जहां तलवार से हमला किया, पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया। आरोपी नरेंद्र ने स्टोरी पर अमन का वीडियो लगाया। हमीदिया अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। देखिए, पूरा मामला बता रहे हैं। शाही दरबार के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जहां राजधानी भोपाल में इस तरह से मामले, दबंगई वाले मामले, जो बदमाश हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं।
तलवार से हमला किया गया। नरेंद्र और नीलेश ने तलवार से हमला किया। पूरा मामला पुरानी रंजिश के चलते इस तरह से वारदात को अंजाम देने का बताया जा रहा है। और देखिए हामिदिया अस्पताल में जहां इस घायल का इलाज भी चल रहा है। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। राजधानी भोपाल की शाही दरबार के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस युवक के साथ इस तरह से बेरहमी से उसे मारा जा रहा है। जानलेवा हमला करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र और नीलेश ये दो व्यक्ति जो इस युवक पर तलवार से वार करते नजर आ रहे हैं। और आरोपी नरेंद्र ने जहां अमन का वीडियो भी अपनी स्टोरी पर लगाया। राजधानी भोपाल में बुजुर्ग का ड्रामा देखने को मिला, जहां कलेक्ट्रेट गेट के सामने उस बुजुर्ग ने हंगामा किया। कलेक्ट्रेट गेट के सामने होर्डिंग पर चढ़ गया। देखिए कलेक्ट्रेट गेट के सामने जो होर्डिंग लगे हुए थे उस पर यह बुजुर्ग चढ़ गया और पुलिस ने समझाइश देकर उसे नीचे उतारा। कोई फिजा थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए वीडियो किस तरह से जो होर्डिंग लगे हुए हैं वहां उसके ऊपर ये बुजुर्ग चढ़ गया है। पुलिस बल भी मौजूद है और समझाइश दी गई। उसके बाद सुरक्षित तरीके से इस बुजुर्ग को नीचे उतारा गया। राजधानी भोपाल से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस की समझाइश के बाद जहां इस बुजुर्ग को नीचे उतारा गया। ग्वालियर के जहां तानसेन नगर स्थित सेंट्रल बैंक के पास खड़ी एक बाइक को कार सवार चोर चुरा कर ले गए। जब बता दें कि पूरी घटना बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और इसके फुटेज में जहां दो लोग कार से उतरकर बाइक का लॉक तोड़ते हुए और बाइक लेकर फरार होते दिखे हैं, जबकि कार में बैठे अन्य लोग भी जहां चोरी के बाद मौके से गायब हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश भी कर रही है। मामला ग्वालियर से बता रहे हैं। और देखिए जहां बाइक का लॉक तोड़ा जाता है और उसे चुरा लिया जाता है। देखिए किस तरह से ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आ चुका है। ग्वालियर से मामला मरीज के परिजन के साथ पार्किंग कर्मियों के मारपीट का मामला ये सामने आया, जहां मारपीट की घटना पर अस्पताल अधीक्षक सख्त भी हुए और इसके साथ ही अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने पार्किंग कंपनी को नोटिस दिया। दोषी कर्मियों को हटाने और अर्थदंड लगाने का निर्देश भी दिया। जहां पार्किंग कर्मियों ने कार चालक मरीज से मारपीट की थी। सोशल मीडिया पर यह मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो किस तरह से मारपीट की जा रही है। मारपीट की घटना जहां अस्पताल अधीक्षक इस पूरी घटना को लेकर सख्त होते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से मारपीट की जा रही है। भोपाल में टीकमगढ़ से कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह के बेटे ने दलित ड्राइवर के साथ मारपीट की और कलियासोत डैम के पास कार और डंपर के बीच टक्कर के बाद विवाद हुआ। कार में जहां टीकमगढ़ विधायक का ड्राइवर था, जबकि विधायक का बेटा घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं था, लेकिन ड्राइवर ने बाद में विधायक और उनके बेटे को बुलाया। दलित ड्राइवर ने आरोप लगाया कि विधायक के बेटे ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनका अपमान किया है और मारपीट की है। इसके बावजूद पुलिस ने उल्टा ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मारपीट के बाद विधायक का बेटा ड्राइवर को जबरन थाने भी ले जाया गया और रात 1 बजे के बाद ही छोड़ा। विधायक के दबाव के कारण अब तक बेटे पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ड्राइवर ने पुलिस कमिश्नर से मामले को लेकर शिकायत की थी। राजधानी भोपाल से पूरा मामला आपको बता रहे हैं। डंपर खराब हो गया था साहब, घाट पे खड़ा हुआ था। अब वो नहीं क्षमता उसकी घाट चढ़ने की थी, इसलिए मैंने टेक डाल के उसको खड़ा कर दिया गया था। वो उधर से आए और पीछे से ओवरटेक करा और गाड़ी पूरी निकल चुकी थी। इनकी पीछे की बैक बत्ती जो थी फंस गई थी, वो निकल गई थी। तो उनने कहा कि मेरी गाड़ी को इनने ठोक दिया पीछे गरीब बस में। थाने ले गई साहब, मेडिकल कराया। मेडिकल में इनने ये लिख दिया कि ये नशे के मुद्रा में है, जबकि मैं नशा करता नहीं हूँ। मेरी कोई इनने शिकायत नहीं सुनी, क्योंकि विधायक थे साहब, विधायक का असर था। शिकायत साहब हमने कमिश्नर ऑफिस गए थे कल, वो मिले नहीं थे सर। हमने एप्लीकेशन दे के आ गए थे उनको। अब पता नहीं अब वो क्या करते हैं, नहीं सुनाई करते हैं। कलियासोत डैम के पास एक डंपर खड़ी थी, जिसके बाद उस डंपर पर कांग्रेस विधायक के जो बेटे हैं उसने टक्कर मार दी और
थाने पहुंच गए ड्राइवर को लेकर के एफआईआर कराने। इस वक्त हम चूनाभट्टी थाने में हैं, जहां पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ कई सारे आरोप दलित ड्राइवर पर विधायक के बेटे ने लगाए हैं। लेकिन दलित ड्राइवर का साफ तौर पर कहना है कि ये डंपर जो है उनकी खराब हो चुकी थी, जिसके कारण कलियासोत डैम के पास उनकी ये डंपर खड़ी थी, लेकिन पीछे से आकर के MP04 ZK 8121 जो कि स्कॉर्पियो का नंबर है, उसने आकर के टक्कर मार दी। दलित ड्राइवर को जबरदस्ती चूनाभट्टी थाने ले आया और यहाँ पर उसके खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज करा दी। जिसके बाद से पुलिस ने भी यहाँ पर विधायक के बेटे के दबाव में एक एफआईआर दर्ज कर लिया। उसके बाद से मामले की विवेचना करने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइवर है, उनके कई सारे आवेदन जो है देने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि ये मामला जो है अब तूल पकड़ता हुआ इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि विधायक के बेटे की गुंडागर्दी जो है इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन मामले को लेकर के जो ड्राइवर है, उन्होंने इसकी कंप्लेन एक आवेदन कमिश्नर को भी दिया है। ड्राइवर का आरोप ये है कि अब तक जो है कोई एफआईआर विधायक के बेटे के खिलाफ नहीं दर्ज की गई है। ये वही डंपर है जिसमें स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी और उसके बाद से इस डंपर को भी जो है जब्त कर लिया गया है। कल से ही ये डंपर ये चूनाभट्टी थाने के सामने खड़ी है और सीधे तौर पर जो दबाव बनाया गया था उसमें बताया ये गया कि ड्राइवर ने ये भी आरोप लगाया कि एक सरकारी गनमैन जो है विधायक के बेटे के साथ चल रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि कोई भी विधायक का बेटा हो या उसके परिवार के सदस्य है, उसके साथ कभी भी जो है सरकारी गनमैन नहीं चलता है। लेकिन जो ड्राइवर है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरकारी गनमैन है उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। फाइल जो है वो खुले, इसके लिए उन्होंने कमिश्नर को एक आवेदन दिया है और उस आवेदन में सीधे तौर पर कहा है कि मामले की जो है जांच कराई जाए, सीसीटीवी कैमरे जो थाने में लगाए गए हैं उसकी जांच हो और साथ ही साथ निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले में जो है जांच की जाए। किसी के भी दबाव में, चाहे वो विधायक हो या फिर कोई मंत्री हो, उसके दबाव में काम नहीं किया जाए, इसको लेकर के उन्होंने एक आवेदन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर, निर्देश पर किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। सिंगरौली में ऊर्जाधानी एक्सप्रेस से गाय टकराई और कुछ देर तक जहां गायों को ट्रैक पर घसीटती ये ट्रेन रही, जहां बता दें आपको कि डीरेल होने से ट्रेन बाल बाल बच गई। बता दें कि कटंगी खुर्द पहुंचने से पहले 2 गाय टकराई और चेकिंग के बाद ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना किया गया, जहां ट्रेन में किसी तरह के नुकसान की जानकारी अब तक नहीं मिली है। मामला पूरा सिंगरौली से बता रहे हैं, डीरेल होने से जहां ये ट्रेन बाल बाल बच गई और इसके पहले छतरपुर के क्रिश्चियन अस्पताल में एक महिला के गर्भ में ही 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने जहां डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गर्भावस्था के दौरान महिला की देखरेख और उपचार इसी अस्पताल में हुआ था और अस्पताल प्रबंधन ने मनमर्जी से पैसे लिए थे, लेकिन प्रसव के दौरान लापरवाही बरती गई और जिसके कारण 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। देखिए, परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से लापरवाही बरती गई। मामला पूरा छतरपुर से बता रहे हैं, 2 जुड़वा बच्चे जिनकी मौत का मामला सामने आया। डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर के आरोप लगातार परिवार लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां ये 2 जुड़वा बच्चे, इनकी मौत का मामला सामने आया। और इसी बीच लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे ब्रेक के बाद हाजिर। मध्य प्रदेश का मेहनतकश किसान संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, यही मंशा है राज्य के मुखिया मोहन यादव की। किसानों के हित में बेहतर से बेहतर करने की दिशा में प्रयत्नशील मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिजली की समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया है। जल्द ही प्रदेश का हर किसान
सोलर पंप से लैस होगा और उनके खेत हर मौसम में लहलहाते नजर आएंगे। हमने अपने राज्य के 32 लाख किसानों के लिए भविष्य में सोलर पंप लगा करके वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे और लगभग 18,000 करोड़ का जो हमारे ऊपर सब्सिडी का भार पड़ता है उससे हम बाहर आए। पीएम कुसुम श्री योजना जिसमें A, B, C तीनों कैटेगरी में हमारी सरकार इसमें काफ़ी काम कर रही है। ये मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, ये निमंत्रण दे रहा है आपको बीच में आया हो कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़े। 13 से लेकर 19 जुलाई तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। बहुत ही आशा से भर जाते हैं जब हमारे मुख्यमंत्री ऐसे किसी दौरे पर बाहर जाते हैं। बड़े पैमाने यहाँ के निवेशकों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने का संकल्प बताया है। डॉक्टर मोहन यादव जी का जो प्रयास है ग्लोबल समिट के माध्यम से इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने का, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। हर एक स्थान पर हमको अच्छा स्कोप मिला है। इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ स्पेन में भी दौरा इसी प्रकार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास बहुत अच्छे हैं, तो मुझे मालूम है कि वो हम जो चाह रहे हैं उससे ज्यादा हमें मिल जाए। के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवनी से खबर, जहां संजय सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बांध के 3 गेट खोलकर के पानी छोड़ा जा रहा है। जहां बैनगंगा नदी पर स्थित भीमगढ़ संजय सरोवर बांध है और सिवनी जिला और बालाघाट में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिवनी जिले सहित महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा के जहां निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं, जो गांव बसे हुए हैं, वहां सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सतर्कता बरतने को लेकर सभी को कह दिया गया है। तो देखिए जिस तरह से तेज बारिश देखी जा रही है, हर जो बांध है, डैम है, उन सभी का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। और बात की जाए संजय सरोवर बांध की, तो यहां भी जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर के तिघरा डैम में के सभी 7 गेट को खोल दिए गए और जिससे लगभग 8 से 10 हजार क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। डैम के गेट खोलने से पहले जहां डाउनस्ट्रीम में बसे गांवों को सायरन के माध्यम से सतर्क किया गया। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जहां राजस्व विभाग और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया, वहीं जल संसाधन विभाग और पुलिस को पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। तो देखिए जो 7 गेट हैं, उन 7 गेटों को खोला गया। सभी जो तिघरा डैम है उसके गेटों को खोला गया और इसी के चलते निचले इलाकों वाले गांवों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं स्पेन, जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं और इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम चल रहा है। देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं। निवेश का महामंथन ये हो रहा है, जहां निवेश को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह से बढ़ावा मिले। Of quality of life, capital cost, rental, natural disaster risk, labor risk, public transport, cost of living, policy incentives. These are some of those criteria or the benchmark policy initiatives that you would like to compare with any other towns in the country if you are thinking of making the investment. And we fare far ahead of our competitive cities. Not only the cost of living and ease of living is important aspects, but we have a very tailor-made policies for each aspect of IT, ITS coverage. We have MP drone usage policy, we have IT, ITS policy, we have semiconductor policy, audio visual gaming, and which is what we are going to sign today. So ABGC policy covers pre-production and post-production, and the film policy of Madhya Pradesh covers the production. So it's a complete value chain that is being now funded and supported by government of Madhya Pradesh. We have also global capability center policy, and we understand that the requirement for each of these areas in IT, ITS is specific, and that is why we have made them tailor-made.
We have a GCC policy which looks after making the global capability centers a real possibility in Madhya Pradesh. We provide capital incentives, we provide talent incentives, whether it is upskilling or reskilling or payroll subsidy. We talk about establishing of center of excellence in AI and cyber security. We are doing R&D into these areas. If you talk about AVGC, we are looking at audio-visual gaming and cartooning. As I have mentioned, pre-production, post-production is getting covered, and we provide support for infrastructure development, fiscal incentives, skilling and training, and also for industry academia-led collaboration and establishment of COEs. If you talk about other incentives like anti-drone policy, and there is a lot of defense collaboration which is happening between Spain and India. So there is a possibility whereby you have anti-drone technology. We have Kamikaze drones which are recently used, and is also a lot of manufacturing capabilities that we have developed, and we are trying to encourage it with the drone-enabled services and drone-enabled ecosystem that we want to provide. There are multiple incentives. If all these policies, after having talked about this, everybody would say, if any business house has to consider, you would consider that what is the ROI on the investment that you are going to make. So this is a snapshot of the investment that you want to make. If you are making an investment of 100 crores, you would actually, 100 crores is 10 billion, sorry, it's a 10 million. If you make a 10 million investment, you get 4.5 million back. Again, if you make a 10 million investment in AVGC, you get 4.8 million back. Against a 10 million investment, you get about 3.8 million from state government and 5 million from government of India. If you are making investment of 10 million in drones, you are making you are getting a 3.5 million back. So this is the kind of incentives that the government of Madhya Pradesh alone is going to give it to the business houses who are ready to invest in Madhya Pradesh. And finally, we are coming up with a space tech policy also to make sure that the whole jigsaw puzzle is actually taken care of. And we are creating hubs, we are creating COEs, we are creating industry academia synergy, as some of them have already started function. So right from industry to the tourism and culture, we are actually technology savvy, and we are looking forward for any collaboration that we would like to have it into our system. Finally, I would say that be the part of this exciting new journey. Please do come to Madhya Pradesh. Please do visit. Even if you don't want to invest, it's okay. At least you would like to come and see. And once we are sure that if you have visited Madhya Pradesh, you would be 100% be willing to make the investment, looking at the future possibilities and the kind of environment that Madhya Pradesh government provides to each one of you. Thank you very much for having listened to it. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for highlighting Madhya Pradesh's bold vision in harnessing the power of technology for a better tomorrow. It is now my privilege to invite His Excellency Shri Dinesh Kumar Patnaik ji, Ambassador of India to Spain, to kindly address this distinguished gathering. Shri Patnaik ji has been a steadfast pillar in strengthening India-Spain relations. Thank you very much. All of you know me, so I don't want her to describe who I am. But it's a great pleasure to have Chief Minister Mohan Yadav ji here. I don't want to talk about Madhya Pradesh because I think the last 5 speakers have all told you, including one Entra Kannades, about how wonderful Madhya Pradesh is. And it is true. If you look at Madhya Pradesh, it's got everything. I mean, not just tourism, nature, AI, tech, industry, everything. I mean, it's a place which very few of you must have heard of before. But when you really look at it, it represents India in its totality. It's in the middle of India, but it's something which has scope for everything. And there was a recent report by Yale and Harvard, which did it together, which spoke about the future of economic development being in the smaller cities, smaller states, and in places which have potential for the future. And Madhya Pradesh is the place for the potential for the future. And I'm glad that you are here getting an overview of what is happening. I don't want
चल रहा है मिशन निवेश को लेकर और मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ावा मिले इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं विदेश दौरे पर, जहां स्पेन का दौरा मध्य प्रदेश के मुखिया का चल रहा है। State governments do it. It's because of the way India is structured. India is a federal structure, and we have what my Prime Minister says, cooperative, competitive federalism, which means every states compete with each other and cooperate with each other at the same time. And states in India have the autonomy to decide their own economic policies. And so state governments go abroad to help get in investments, to bring in infrastructure development, economic growth, jobs. And this is the job of the state governments. And so state governments go abroad, like here, like provincial governments in Spain. It's the same thing. Like provincial governments go abroad to try and get investments, same way state governments do. And what the benefit is two things. One is in a competitive structure, investors can negotiate with state governments to get better deals because they're competing with each other. So it makes it easier for you to start looking at each state and seeing what benefit you can. What you heard about Madhya Pradesh can give you an idea of what benefits you can get if you invest there. Not just investing, you also have the senior political leadership of the state coming here talking to you, which means that there is an assurance to investors that you're going to a place where the senior political leadership is taking care of you. This is a big assurance to investors. In today's uncertain world, this assurance is very, very important. And so, having state governments come straight here talking to you gives you a scope to understand what it is. I liked what the last speaker said, Sanjay Dubey said. He said, you don't have to come and do investing in India or in Madhya Pradesh, or just come and visit us. The same thing that the delegation is doing here. They've come here to Spain to see what are the opportunities available. It's up to us to tell them what the opportunities are available. Same way, if you go to Madhya Pradesh, they will lay out the red carpet for you to be able to tell you what are the opportunities available. You all have done business across the world. Madhya Pradesh is a place you would like to go to see that opportunities are endless. This is the place where the future of India will be written. And I would suggest that some of you at least should make a trip on your next trip to India to go to Madhya Pradesh. Otherwise, I find Spaniards mostly go to the bigger cities. They go to Delhi, Mumbai, Chennai, Pune, and they skip the smaller ones. The smaller ones are where the potential lies. Not just in renewable energy. I mean, for example, renewable energy. Madhya Pradesh has a capacity of more than 66 gigawatts of renewable energy, of just solar energy. Forget about wind and others. If any sphere you look at it, the potential is huge. It's for us to be able to harness it. And today's uncertain world, this is very important. If you look at the world today, uncertainty is very high. Business people don't know how to track their next movements. The tariff war going on across the pond, the Atlantic pond, is creating uncertainty everywhere. In these uncertain times, it is important that we work with each other, whether it's state governments, national governments, provinces. We need to work together. India and the EU, we are working together. Today morning, I just had a meeting with the Ministry of Economy about taking forward the India-EU free trade agreement. We are hopeful by the end of the year, we will have the India-EU free trade agreement, and that we will be able to take the India-Spain relation and the India-EU relations to the next heights. So enjoy today's afternoon descriptions. The Chief Minister will tell you a lot about what is happening. Like they said, Madhya Pradesh is the big cat state, which means it has all leopards, tigers, everything. So it's my honor now to give the floor to the next biggest cat of Madhya Pradesh, the Chief Minister himself. Thank you. Thank you, sir, for such gracious words and for always championing India's global engagement with such dedication and vision. We have now arrived at the most awaited moment of today's program. Under the visionary leadership of Dr. Mohan Yadav ji, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, the state is witnessing remarkable growth and transformation across sectors. We are truly honored to have him with us, and today's August gathering is eager to hear his inspiring vision. Since the Honorable Chief Minister will be speaking in Hindi, I request you all to please use channel number 3 on your headphones.
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। कृपया आएं और हमें संबोधित करें। धन्यवाद। Can we have a huge round of applause, please? इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम मैड्रिड स्पेन में मंच पर विराजमान स्पेन में भारत के राजदूत माननीय पटनायक जी, मध्य प्रदेश से मेरे साथ आए SCS संजय दुबे जी, PS राघवेंद्र सिंह जी, शिवशेखर शुक्ला जी, हमारे सम्मानीय अतिथिगण और आप सब। वैसे तो भारत और स्पेन दो अलग अलग देश हैं, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन दो प्राचीन सभ्यताओं की आत्मा एक ही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अतीत के काल में जब दुनिया के अंदर अलग अलग मानव सभ्यताओं का अस्तित्व शुरुआती दौर में था, ऐसे में जिन देशों ने अपनी खुद की सभ्यता, अपनी पहचान बनाई और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल्यों के आधार पर अपनी खुद की दुनिया में एक साख बनाई, स्पेन और भारत एक तरह से जुड़वा भाई है, भाई भाई है। इस नाते से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अभी मैं जब स्पेन से लौट के एक बुल फाइटिंग वाले स्थान से निकला, तो बुल फाइटिंग वाला स्थान ये अतीत का हमारा वो गौरवशाली पृष्ठ भी है। कुछ चीज़ें आज के दौर में कुछ अच्छा हो सकता, कुछ बुरा हो सकता, दोनों तरह के लोग हैं। कुछ उसको नापसंद करेंगे, कुछ पसंद करेंगे, लेकिन ये सच अर्थ में मनुष्य और पशुओं की साथ में रहने की हमारी पुरानी परंपरा का एक गौरवशाली चिन्ह भी वो है, जिसके आधार पर हम अपनी प्रकृति से प्रेम को बताते हैं। और जब प्रकृति से प्रेम बताते हैं तो स्वाभाविक रूप से आज के इस दौर में जब बिजनेस की बात आ रही है तो हमारे लिए टूरिज्म वर्तमान के लिए इनोवेशन, डिज़ाइन, तकनीकी दक्षता, ऐसे कई मामलों में स्पेन की अपनी पहचान है। लेकिन स्केल अप और बड़े पैमाने पर उसको लागू करने की ताकत अगर कोई रखता है तो मध्य प्रदेश रखता है। आपके साथ हमारे संबंध की गंभीरता भी बताता है और उसके आधार पर हम आप मिलकर के हमारे अपने अपने क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज, जल, वन, कृषि, पर्यटन इत्यादि से परिपूर्ण आपको शांत और सुरक्षित निवेश के लिए आकर्षक स्टेट के नाते से वो आपको आमंत्रित करता है। हमारे काबिल अफसरों ने सब अलग अलग प्रकार से उसकी विशेषताओं को बताया भी है। हर एक सेक्टर के हमारे स्टेट के सबसे बड़े ऑफिसरों को हम लेकर के आए हैं, जो अपने अपने टूरिज्म की बात टूरिज्म के तरीके से समझा रहे हैं, जो हिस्टोरिकल रूप से भी और फॉरेस्ट से लगा करके कई क्षेत्रों में और सबसे तेज गति से विकास करने वाला टूरिज्म का सेक्टर। मुझे इस बात का गर्व है, अगर पूरे देश का आंकड़ा देखे तो मध्य प्रदेश उसमें हाईएस्ट पे आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और उसी नाते से बड़े पैमाने पर अपने स्पेन में भी इस बात की संभावना है कि हाँ, आप हमारे साथ जुड़िए और ख़ास करके FDI को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी इत्यादि कई प्रकार की मुझे यह गारंटी पक्की है कि कोई और राज्य इतने प्रकार की छूट व्यापारियों को इस प्रकार से नहीं दे सकता जो मध्य प्रदेश ने देने का साहस किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार ने हमको छूट दी है और मध्य प्रदेश उनके दिल के ज़्यादा करीब भी है, इस नाते से मैं माननीय मोदी जी की तरफ से भी और मध्य प्रदेश राज्य में जब बिजली, पानी, लैंड बैंक, मानव संपदा सभी प्रकार की एक विकास करने के साथ साथ व्यापार करने की जो आवश्यकता होती है, वो सारी बातों को आपके साथ जोड़कर देखते हैं। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि आज
इस पूरी बिजनेस मीटिंग में जिस दृष्टि से मंच से बात हुई है उतनी गंभीरता से आपने सबने भी सुना है। और जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले हम खेल के लिए भी फुटबॉल के अंदर लालीगा और उसके माध्यम से भी स्पेन ने अपनी इकोनॉमी में कितनी बड़ी जंप की है। तो ये स्पोर्ट्स का भी क्षेत्र एक बड़ा है और फुटबॉल से जोड़ करके स्पेन ने अपनी जो पहचान बनाई है। मैं न केवल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हेल्थ के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी सभी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारा आपका संबंध सभी प्रकार से आगे बढ़ता है। एक तरफ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज्म में भी बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं तो भारत के साथ स्पेन का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है 9.32 बिलियन डॉलर का, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी वाकई ये बहुत अद्भुत हमारा ये पूरा आज का आयोजन होने वाला है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो संपन्न और शांत प्रदेश, जिसको परमात्मा ने विशेष कृपा के आधार पर बहुत सारी खूबसूरतियाँ दी है, बहुत सारी अच्छाइयाँ दी है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो हमारी माइनिंग सेक्टर में भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारी भू संपदा हमारे साथ है, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की संभावना भी है और उसके आधार पर उत्पाद के माध्यम से आपका हमारा व्यापार व्यवसाय भी अच्छा हो सकता है। मैं आज ज़्यादा न बोलते हुए केवल संपूर्ण भारत की तरफ से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक दृष्टि से भी अगर आप किसी और राज्य में भी व्यापार व्यवसाय भारत में कर रहे होंगे तब भी आपको मध्य प्रदेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आने जाने के मार्ग में तीनों तरह से हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमारे देश के साथ बाकी व्यापार को भी बढ़ावा देने की दृष्टि में बहुत महत्व का रोल अदा करती है। आज जब मैं आपसे एक बार फिर अपनी बात को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूँ तो एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी है और एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है। और कई सारे हमारे अपने वहाँ के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक बार फिर मैं अपनी सरकार की इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर आपको पुनः आमंत्रण देते हुए अंत में फूड प्रोसेसिंग की बात जरूर करना चाहूँगा। फूड प्रोसेसिंग में भी खास करके मुझे मालूम है कि ऑरेंज का और ऑरेंज के हमारे अपने बाकी देश के हिस्सों में या दुनिया में जाते हैं, पर स्पेन का इसकी अपनी विशेषज्ञता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर भी बड़ी संभावना है। आप उम्मीद करेंगे फूड इंडस्ट्री में खाद्य प्रसंस्करण की सभी प्राथमिक प्रोसेसिंग से लगा करके वैल्यू एडिशन तक के एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में जो आप संभावित रूप से लगाने जाएंगे और उसी के साथ साथ टेक्सटाइल और गारमेंट्स में भी बड़े पैमाने पर हमने काफ़ी काम किया है। इन सब का लाभ हमको मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स, एपीआई, मेडिकल डिवाइसेस, सभी क्षेत्रों में हमारे पास वर्ल्ड क्लास की सुविधा देने की सक्षमता है। आइए हम सब आगे बढ़ें और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करते हुए ठोस धरातल पे खड़े हों। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, वंदे मातरम, जय हिंद।
Dhanyavad, Mananiya Mukhyamantri ji. Thank you so much, sir, for your powerful and visionary. We are deeply grateful for your presence today. The time has come to bring this prestigious event to a close. I invite Dr. Ilya Raja ji, Managing Director of the Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation, to kindly come forward and share his concluding remarks. Yeah, thank you so much. Hola.